کہ کووڈ تک کوئی بنتے 14-13 سال جب سے میں سیشن کر رہا تھا، میرے سیشن میں 9 10 11 12 لوگ ہوتے تھے. 100+ لوگ ویکلی سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہوم سکولنگ کرنی ہے. اس وقت جو فاسٹسٹ گروتھ ہو رہی ہے نا پاکستان میں ہوم سکولنگ کی، وہ کراچی میں ہو رہی ہے. پورے کلبز بن گئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ میرا گھر دیکھنے آتے ہیں، اور جیو ٹی وی پہ اور اس پہ بہت سی جگہوں پہ اس کی ڈاکومنٹریز چلی. ٹی وی چینلز پہ میرے بچوں کو بلایا جاتا ہے. ابھی میری تیسری بیٹی کی شادی جو ہونے لگی ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے بابا اب تو میری شادی ہو رہی ہے، تو میری بڑی 2 بہنوں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا. بابا آئی تھنک آئی شوڈ ٹیل یو واٹ ہیپنڈ، کہ ہمیں سب سے زیادہ ٹاکسک کون تھا اتنے سال، اب جا کے وہ چپ ہوئی ہیں. میں نے کہا کون؟ کہیں گے آپ کی بہن. کہ لوگوں کو کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو میں 4 کیٹیگریز میں پاکستانی پیرنٹس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک تو وہ کہ جو اسکول بھیج رہے ہیں اینڈ دے فائنڈ نتھنگ رانگ وتھ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم. اچھا، اب صرف اگر ایک کوئی سلور لائننگ ہے نا، کوئی رمق روشنی کی کہیں دور افق کے اوپر، تو وہ صرف اتنی سی ہے کہ میں نے پچھلے 25 سال میں وہ نمبر آف پیرنٹس کہ جو کہتے تھے نہیں یار ایجوکیشن سسٹم تو بالکل فرسٹ کلاس ہے، ظاہر ہے مجھے ہوم سکولنگ کرتے ہوئے 26 سال ہو گئے، تو آپ نے کیوں اپنے بچوں کو اٹھا لیے اسکول سے؟ تو وہ نمبر آپ سمجھیے 99.9 سے الحمدللہ 2024 میں 50% پہ آ گیا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو پاکستان کے اندر اگر کوئی پچھلے پازیٹیو چیز میں نے 25 سال میں دیکھی ہے نا، تو وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ان احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لوگوں کو پہلی بار ایور سنس آئی migrated to Pakistan about 30 years back, since then only improvement, only change I have seen in Pakistan is that instead of 99% people thinking that school education is perfect, there is nothing wrong with it, now 50% are thinking that there is something wrong with it. اب ہم ان 50% کو تو بھول جاتے ہیں جن کے نزدیک ایوری تھنگ از چل، ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. ہم اب ان 50% میں آ جاتے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ دیئر چائلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ اف ہی اور شی کنٹینیوز ود دا ایجوکیشن دیٹ از گوئنگ آن ان دا اسکولس. تو ایک وہ کیٹیگری. اب اس میں سے 2 کیٹیگریز اور نکلتی ہیں. ایک کیٹیگری اب ان میں سے جو پہلی نکلتی ہے، ان کو ہوم سکولنگ ایز این آپشن نظر آ رہی ہے، لیکن وہ سٹیپ نہیں اٹھا پا رہے. یہ کیٹیگری سی کر لیں آپ، 3rd کیٹیگری کر لیں. انہوں نے ادھر دیکھا، کیونکہ ہوم سکولنگ آپ یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان میں بڑی ہیٹ اپ ہوئی ہے. اٹ از فاسٹسٹ گوئنگ انڈسٹری ان دا ورلڈ. آئی came back from United States about 30 years back, اور اس وقت امریکہ میں ہوم سکولنگ بہت فاسٹ آگے گرو کر رہی تھی. اس وقت تو آگ لگی پڑی ہے نا برٹن میں، امریکہ میں ہوم سکولنگ بہت فاسٹ جا رہی ہے. اور اس میں سے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ LGBTQT جو آپ دیکھ رہے ہیں. I don't know what's going on with American people اور British people کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں. ان کے نزدیک اس ایشو سے بڑا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ابلیس نے، کوئی شیطان نے ایسا گھیرا ہے کہ اٹ از unbelievable. I can't even imagine کہ کتنے وہ ہارڈ ناک ایکسٹریمسٹ ہو گئے. ہمارے ملک میں جو ایکسٹریمسٹ کوئی فرقہ ہے نا، وہ اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے جتنا اس وقت ویسٹرن ورلڈ اپنے اس ایک نظریے پہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے لگ رہے زومبیز ہیں، کسی نے ان کا مائنڈ کیپچر کر لیا. اور جو حال ہو ہے ویسے فرانس میں، جرمنی میں، جرمنی میں اور US میں میں بیان نہیں کر سکتا یہاں بچوں کے سامنے کہ جو وہ کر رہے ہیں اور جو چل رہا ہے. تو وہاں پہ جو کرسچنز ہیں، ایک اگر کیمپ جنریٹ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے نا، تو پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اس وقت امریکہ میں ریلیجس فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اپنے لبرل ایجوکیشن سسٹم کے خلاف جس طرح کھڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو اس کا اشر اشیر نہیں ہے. ہم تو خواہ میں اسلام کا لیبل لگا کے ان اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ویسٹرن ایجوکیشن سے زیادہ لبرل ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے میں نے وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں 10 سال کام کیا ہے، تو آئی نو اٹ ان سائڈ آؤٹ. بعض چیزیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی ویسٹرن ایجوکیشن سے زیادہ لبرل ہے، اور ہمیں وہ نہیں تنگ کرتے. اور وہاں کے جو بنیاد پرستن کرسچن ہیں، جن کی نہ کوئی شریعت ہے، نہ ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہے، نہ سنت ہے، ان کو وہ کاٹ رہی ہیں اپنے سسٹم کی. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، ایز اے مسلم ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بہت سے لوگوں کو ویسٹ کو دیکھ کے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہوم سکولنگ از این آپشن، بٹ دے آر انیبل ٹو ٹیک اے اسٹیپ. ہمارے آفس میں ہر ہفتے سیشن کر رہے ہیں ہوم سکولنگ کا، اور I've been doing home schooling session for last 15 years. میں کل عثمان بھائی کو بتا رہا تھا، it is so amazing کہ کووڈ تک کوئی بنتے 14-13 سال جب سے میں سیشن کر رہا تھا، میرے سیشن میں 9 10 11 12 لوگ ہوتے تھے. کل ہمارا جو ہوم سکولنگ کا سیشن ہوا نا، اس میں 100+ لوگ ویکلی سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہوم سکولنگ کرنی ہے. تو ناؤ دیر از، اب ہم
थर्ड और फोर्थ में आ गए। एक वो हैं जो होम स्कूलिंग करना चाहते हैं लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं कर सक रहे। अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो नंबर 1 2 3 रीजंस क्या हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है जो होम स्कूलिंग शुरू कर चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि करने कैसे है, इसका सही वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए जो पहली कैटेगरी थी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उनको एजुकेशन सही लग रही है उसको छोड़ देते हैं। दूसरे जो लोग हैं जो समझते हैं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद एजुकेशन बट दे डोंट फाइंड अ वे आउट, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता होम स्कूलिंग, जब होम स्कूलिंग के लोग बढ़ेंगे, जैसे कराची में इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है ना पाकिस्तान में होम स्कूलिंग की, वो कराची में हो रही है। पूरे पूरे क्लब्स बन गए हैं। हम एक नेचर फार्म वहाँ पे अब ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे जो होम स्कूलिंग करते हैं एवरी अदर डे आते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो आपने उस्मान भाई से बच्चों ने आपके एआई सीखी है वो प्लांट पे, फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। उनके लिए वहाँ पे हम डिहाइड्रेटर लगा रहे हैं, बी फार्मिंग कर रहे हैं, सब लाइक। तो कराची में इज़ गोइंग वेरी फास्ट। उसमें शायद एक बड़ा रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ, वो जो रीज़न है कि वहाँ क्यों फास्ट है। आप हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर कि जो लोग अब होम स्कूलिंग करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे। जो मेरा अब इतना एक्सपीरियंस है मुझे उसमें 2 रीज़न्स नज़र आते। एक रीज़न ये है कि दे डोंट नो कि 1 2 स्टेप 1 2 3 करना कैसे, दैट्स देयर इशू। और सेकंड वो है कि शायद उनको पता चल गया कि 1 2 3 करना कैसे, लेकिन वो उनके रिलेटिव्स जो है ना, समाज उनके आड़े आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ समाज से। आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं ना, सिर्फ आपको उनकी रजामंदी चाहिए। सब होम स्कूलिंग करने के लिए जितने लोग, बाय द वे मेरा जो घर है ना उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, पूरी दुनिया से लोग मेरा घर देखने आते हैं क्योंकि हमने उसको एज अ होम स्कूल 25 साल पहले डेवलप किया था और जियो टीवी पे और इस पे और उस पे बहुत सी जगहों पे उसकी डॉक्यूमेंट्रीज चली है। ठीक है, टीवी चैनल्स में मेरे बच्चों को बुलाया जाता है, वो बुला चला। कहने का मतलब ये है कि जो आपके कोर मेंबर्स हैं ना, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी आप पे है कि आप उनको कन्विंस करें, क्योंकि आपका बच्चा जब होम स्कूलिंग करेगा तो उनके कमेंट्स से मुतासर होगा डेली बेसिस के ऊपर। आपके घर से बाहर सबको मुतमईन करना, अगर आपने ये करने की कोशिश की ना, आप कभी होम स्कूलिंग नहीं कर सकेंगे। जब मैं लोगों को मशवरा देता हूँ ना तो वो कहते हैं वाह अब बिल्कुल क्लियर हो गया, दे जस्ट किक द बकेट, देन दे स्टॉप लिसनिंग टू देयर बेशक बहन और ये और वो। आपको मैं बताऊँ, मेरी बच्ची पहली दफ़ा, आप मैं आज से बड़े मज़े की बात शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग होम स्कूलिंग शुरू नहीं कर सकते। अभी मेरी तीसरी बेटी की शादी जो उस्मान भाई कह रहे हैं ना होने लगी है, तो वो मुझे कहती है बाबा अब तो मेरी शादी हो रही है, तो आपने हमारी होम स्कूलिंग की ना, तो मेरी बड़ी 2 बहनों ने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताए बगैर नहीं जाऊंगी। वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रही है ना शादी के बाद इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ा शौक लगा क्योंकि उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की ना, बाबा आई थिंक आई शुड टेल यू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग आवर होम स्कूलिंग। तो मैं अब जा रही हूँ ना, तो मैं आपको बता के जाना चाहती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन था, किसने हमें जिच किए रखा है इतने साल, अब जाके वो चुप हुई हैं। मैंने कहा कौन? करेंगे आपकी बहन। मैं तो पता नहीं कोई काम कर रहा था या ऐसे ही मोबाइल पे कर, मैं बिल्कुल सन्नाटे में आके लेटा था, मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने कहा ज़ैनब आप क्या कह रही हैं, क्या है? बाबा आपकी बहन हमें 11-12 साल तक रोज़ाना कॉल करके रोने, आंखों में आंसू आए हुए, कहती रही कि तुम्हारा बाप ब्लंडर कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुम बगावत कर दो, तुम स्कूल जाओ। तो मैंने कहा ये मुझे आपकी बड़ी 2 बहनों ने सफ़िया मारी ने तो कहा बाबा वो आपकी रिस्पेक्ट करती हैं। और आज वही मेरी बहन, उसकी एक इकलौती बेटी अपने 2 बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही है, और उसने मेरी बेटियों की, मेरी बहन ने मेरी बेटियों की, मेरी मोहब्बत में, अपनी भांजियों की मोहब्बत में ज़िंदगी अजीरन करके रखी 1 दहाई तक। इट्स सो टेरेबल। और उसके अलावा मैंने औरों के कितनों की मैंने सुनी है, वो बयान से बाहर है। अब तो हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, नेट भरा पड़ा होम स्कूलिंग से। मैंने तो जब होम स्कूलिंग शुरू की थी तो उस वक्त तो नेट था ही कोई नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं था कि मैं खोल के दिखाता देखो कितनी होम स्कूलिंग हो रही है दुनिया। उस वक्त तो व्हाट्सएप भी इतना पॉपुलर नहीं था, कोई ग्रुप नहीं बने हुए थे। अब तो नेट खोलो तो 1000 आपको ग्रुप्स मिलते हैं या नेट मिलते हैं। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल था शुरू करना, अब तो आसान हो गया। लेकिन हैविंग सेड दिस, आप जब तक मियाँ बीवी, और उस वक्त जब हमने होम स्कूलिंग शुरू की थी तो मेरे फादर थे, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। एक वन फाइन डे हमने अपनी बच्ची को स्कूल एडमिट किया था 2.5 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में उसकी 6 मंथ की रिपोर्ट आई, तो उस पर लिखा हुआ था कि माशाल्लाह सफ़िया कैन रिसाइट all 6 kalmas perfectly, she can say A to Z very nicely, she has दी मेमोरी टू रिसाइट दिस एंड। वो जो बकवास पाकिस्तान में लिखते हैं ना, ये कौम महा कोई ऐसी है कि हर कोई एक दूसरे को ना चूना लगाने में मसरूफ़ है। दूध वाला है वो स्कूल वाले को चूना लगा रहा है, स्कूल वाला दूध वाले को लगा रहा है,
पुलिस वाला दूध वाले को लगा रहा है, मौलवी साहब उसको सब चूना लगाई जा रहे हैं और कोई किसी को नहीं कहता ये लेट्स स्टॉप इट। तो उसमें वो स्कूल भी था। तो हम 3 थे बैठे हुए शाम को, हमने कहा यार सफ़िया तो एक लफ्ज़ बोलती नहीं है, अभी तो उसको ठीक से अपनी माँ का नाम बोलना नहीं आया, वो कह रहे हैं इसको छेकल में आ गए। तो उसके दादा जिंदा थे, उनका तो तप गया ना। उन्होंने कहा बेटा ये जो आप हर वक्त करते रहते हैं होम स्कूलिंग, आप बाहर से क्या पढ़ के आए हैं, अपनी बच्ची के लिए आप होम स्कूलिंग नहीं कर सकते। मैं नहीं भेजा, उनको इतना गुस्सा आया, वो जज्बाती हो गए ना, उन्होंने यूं फाड़ी शाड़ी, उन्होंने कहा कल से कोई बच्ची मेरी पोती मेरी नहीं जाएगी स्कूल। मुझे कहने, दोनों बैठ गए ना मेरे सामने बैठ गए जैसे कोई क्लाइंट होते हैं, आप बताएं हमने क्या करना है। मैंने उनको बताया भाई ये है ये है ये है। और चूंकि हम बहुत ही आइसोलेटेड किस्म की फैमिली हैं पंजाबी, रहे कराची में रहे हैं, हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं। हमारी बड़ी बच्ची की शादी हुई थी तो 19 लोग आए हुए थे, पकड़ लो कर लो जो करना। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं, हमारे ऊपर सोशल प्रेशर नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या करना होगा, मैंने कहा ये करना ये करना ये करना। तो हमने शुरू कर लिया। तो फर्स्ट मैसेज ये है कि अगर आप मियाँ बीवी एग्री है ना होम स्कूलिंग पे, यू डोंट नीड टू लिसन टू एनीबॉडी एल्स। अगर आप दोनों मियाँ और आप सारे यहाँ कपल्स बैठे हैं, इसका मतलब है आप दोनों एग्री हैं। तसव्वुर करें मेरे पास, मैं आप ये सुनने वाली बात है, औरतें रो रो के मुझे कॉल करती हैं और आपको पता नहीं, यानी मुझे खुद नहीं पता, आपको तो क्या पता, मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक कितने फादर्स की थेरेपी की है कि भाई अपनी बीवी को होम स्कूल शुरू करने दो। तसव्वुर करें वो औरत जो 8-8 आंसू रोती है कि मुझे पता है कि स्कूल में एजुकेशन ठीक नहीं मिल रही, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते, एंड इट्स ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द मदर। ये अच्छी बात है और हमारे लिए शायद मर्दों के लिए एक लम्हा फिक्री है कि हमेशा होम स्कूलिंग की जो इनिशिएशन है वो हमारी औरतों की तरफ से क्यों आ रही है। मर्द मुझे कॉल करके क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी को समझाओ। तो अगर आप दो समझ गए हैं ना, तो यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।